دلچسپ موضوع ہے. تمام اہم ریلیونٹ موضوع ہے. ہر روز ہزار مسئلہ ہے. چلے پاکستان میں خاص طور پہ سندھ میں خاص طور پہ گلشن میں غریب پہاڑن میں غریب بھجن میں پورا پاکستان مسائل سے بھرا ہوا ہے. مگر ان میں چند مزید بدقسمت علاقے ہیں. بدقسمت تو شاید موزوں لفظ نہ ہو کیونکہ بدقسمت سے مراد ہے کہ کوئی قسمت میں ایسا لکھا ہوا ہے. ایکچولی اٹ از اے مین میڈ ڈیزاسٹر. سندھ سب سے زیادہ پریشانیوں میں ہے اور ان میں جو شہروں کے غریب محلے اور دیہات. شہروں میں کیٹیگریز ہیں نا. شہروں میں کلفٹن بھی ہے, ڈیفنس بھی ہے, شارع فیصل بھی ہے, حیدرآباد کا ڈیفنس بھی ہے, سول لائنز بھی ہے, مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے. مگر انہی شہروں میں کراچی میں لیاری بھی ہے, سوراب گوش بھی ہے, سچل, شانتی نگر, لانڈی, کورنگی, تنگ گلیاں, گولی مار کی, تین ہرجی کی, حیدرآباد کا قاسم آباد محروم ترین علاقہ, لطیف آباد کی تنگ گلیاں, پریٹ آباد, لیاقت کالونی. ان تمام مسائل کا حل آپ کے بس پہ نہیں ہے. تمام وسن ہے کونے سمورا مسئلہ حل کرے سکو پر کتنا ہی مسئلہ تمہیں حل کرے سکو تھا. میں تصوراتی باتیں کم کرتا ہوں. تصوراتی باتیں کہ یوں ہو جائے گا انشاءاللہ. میں وہ باتیں کرتا ہوں عموماً جو مجھے لگتی ہیں کہ ممکن ہیں. خواب دکھانے کے بجائے خواب ضرور دکھائے جائیں مگر وہ حقیقت کے قریب خواب ہوں جو ممکن ہوں. تو آپ سب جو زندگی گزار رہے ہیں, جو آپ میں سے بکلا ہیں وہ, جو قانون کے طالب علم ہیں وہ, جو سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ, اور جو عام لوگ ہیں, اس پہ ایک طریقہ زندگی کا یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. سارا دن آپ صبح سے شام تک اٹھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. آپ بیٹھ جائیں ایک طرف, آپ ایک طرف بیٹا بیٹھ جائیں, آپ چل کر بول رہے ہیں آگے میں. زندگی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اکثر وہ لوگ ملیں گے جو کہیں گے کچھ نہیں ہوگا. پڑھ رہا ہوں, سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں, کچھ نہیں ہوگا. سول جج کی تیاری کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, کچھ نہیں ہوگا. میں افسر سے ملنے جا رہی ہوں, کچھ نہیں ہوگا. پبلک سروس کمیشن کا فارم جمع کروا رہی ہوں یا کروا رہا ہوں, کچھ نہیں ہوگا. کچھ کو دو درخواست دینا, کچھ کو دو دان دینا, کچھ کو دو کیس پہ کیا, کچھ کو دو, کچھ کو دو. یہ ایک حد تک یہ بات بھی صحیح ہے کہ ماضی کے تجربات کے بنیاد پر آپ جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, وہ واقعی تجربات ایسے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. مگر سوچے تمام لوگوں نے یہی سوچا ہوتا تو جب آپ سب مر رہے تھے, ہم سب مر رہے تھے 2020 اور 21 میں, اور استخارے نکال رہے تھے اور پوسٹر رکھ رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے, اس وقت اگر مغرب کے ڈاکٹرز, مغرب کے ریسرچر جن کو سارا دن گالیاں دیتے ہیں, مغرب نے تباہ کر دیا, اوریانی فحاشی, ہم بڑے عقل مند ہیں نا, ہم کہتے ہیں اوریانی فحاشی مغرب ہے اور نیک کام سب ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہ جو اوریانی فحاشی, درندگی, وحشت, بربریت والا مغرب اگر کووڈ کی ویکسین نہ ڈھونڈ رہا ہوتا اور وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا, پاکستان اور انڈیا اور سعودی عرب اور بنگلہ دیش کہ یہاں لوگ عظیم بسے ہوئے ہیں, نیپال, سری لنکا اور دبئی میں اور یو اے ای اور کویت میں, یہ بھائی اہل ایمان بھی ہیں, اہل عقل بھی ہیں, پاکستان والے ماشاءاللہ
पिशावर के मदरसे में तहकीक जारी है, जुंगशाही में, छठे में, बदीन में, लियाकत कॉलोनी में दिन रात तहकीक जारी है कोविड पे। इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, तो फिर हमारा क्या असर होता। तो ये जो कुफार हैं, अमेरिका, बरतानिया और चीन वाले और रूस वाले, उन कुफार ने कोविड का इलाज ढूंढ लिया और अब हम बैठे हुए। कुफार डेंगू भी ढूंढ लेंगे, कुफार गर्दन तोड़ का भी इलाज ढूंढ लेंगे, HIV पे बड़ी कुफार की तहकीक चल रही है, एड्स पे कुफार लगे हुए हैं। कुफार में ये माइक्रोफोन भी इजाद किया है जिसपे हम बैठ के कुफार को गालियां देते हैं। कुफार ने ये पंखा भी इजाद किया है जिसके नीचे छांव में बैठे हुए हैं। कुफार ने ये मोबाइल भी इजाद किया है जिसपे हम सुबह शाम ईमान अफरोज मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को। कुफार का बनाया हुआ मोबाइल है, कुफार की बनाई हुई सिम है जिसपे ईमान अफरोज मैसेजेस का तबादला जारी रहता है सुबह शाम। तो अगर ये कुफार इसी तरह सोचते जैसे हम सोचते हैं, ये जैसे हम सोची ना तो कुछ कौन थी दो। आइंस्टाइन ये सोचता कुछ नहीं होना, न्यूटन सोचता कुछ नहीं होता, नेल्सन मंडेला सोचता, हो ची मिन्ह, माओ, लेनिन, इब्राहिम लिंकन, ये तमाम लोग सोचते कि कुछ नहीं होना, कोई रास्ता नहीं है। मादाम क्यूरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये कहते कुछ नहीं होना। बाबा वही कमकार जी कर कुछ कोन थी हर को छो तो देखा जाए वही पहले कमकार के लग छावर दो सियासत मां, कानून मां, अकुल मां। तो अगर मोहम्मद अली जिनाबी ये सोचता, मोहनदास करमचंद गांधी भी ये सोचता, सुभाष चंद्र बोस भी ये सोचता, भगत सिंह भी ये सोचता कि कुछ नहीं होना फिर, और 73 का आइन बनाने वाले ये सोचते कि ये कौन सा 73 के आइन पे अमल करेंगे, और पाकिस्तान पीनल कोड वाले सोचते कि ये इन्होंने कौन सा पाकिस्तान पीनल कोड पे अमल करना है, ये कौन सा सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करेंगे। और जस्टिस दोराव पटेल, जस्टिस कार्नेलियस, जस्टिस बचल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम, ये तमाम जजेस भी ये सोचते हैं कि ये सारा 2 नंबर मुआशरा है, अच्छे फैसले देके क्या करेंगे, इन्होंने कौन सा अमल करना है, लोग बिगड़े हुए हैं। तो फिर क्या असर होता है। वो हिकड़ी हिकड़ी घिटिए में तव्हां के रोज मोजड़ा मिलना, आपके हुकूक छीने जाते, आपके घरों पे कब्जे होते, ये जो करप्ट हुक्मरान है ये आपकी सब चीजें ले जाते। तो बदनसीबी है कि हमारे पास इत्तलात बहुत देर से पहुंचती, उम्मीद भी बहुत देर से पहुंचती। उम्मीद देर से पहुंचे तो तबाही हो गई ना। यानी आप समझे तबाह हो रहे हैं और कोई अच्छी खबर हो आप तक पहुंचे नहीं, और आप तक सारी बुरी खबरें आपको रेगुलर पहुंचती रहे। मसलन 30-40 साल पहले आपको बताया गया था कि शिया और सुन्नी बड़े सख्त मुखालिफ हैं, और 50-60 सालों से आपको सख्त बताया गया है कि कुछ लोग ईरान के साथ हैं, कुछ लोग सऊदी अरब के साथ हैं, और हम सब डंडे लेके एक दूसरे से लड़ते रहे, शिया सुन्नी। अब ये जदीद खबर तो पहुंची नहीं है कि ईरान और सऊदी अरब मिल गए, हम सबको लड़वा के सत्यानाश करवा के वो तो मिल गए। आप लड़ते रहे, शिया और सुन्नी, वो तो बन गए आपस में। पर आपको सऊदी अरब ने बताया था कि अकेली औरत का बाहर निकलना मना है, कुफ्र है, गैर मुहर्रम मर्द के अलावा बाहर नहीं निकला, मुहर्रम मर्द के साथ नहीं निकला जा सकता, और आप डंडे लेके निकल पड़े। वहां तो उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, अब तो खवातीन गाड़ियां भी चला रही हैं सऊदी अरब में। दुनिया के मॉडर्न तरीन शहर एक तो यूरोप में है, दूसरी से दुनिया की सबसे बेहतरीन बीचेस कहां हैं, जिन गोरों को कहते हैं पुरियानी, वो फहाशी, गंद, बुरे लोग, घटिया लोग, वो दुनिया की सारी बेस्ट बीचेस हैं। उनमें उरूज पे कौन सी बीचेस हैं? शर्मुल शेख इजिप्ट, मिस्र, अल न्योम सऊदी अरब, दुबई। बेहतरीन डिस्कोस और बार्स
दोहा, दुबई, शारजाह, दुनिया का जदीद तरीन बीच बाली, इंडोनेशिया, दुनिया का और खूबसूरत तरीन मॉडर्न बीच लिंकावी, मलेशिया। आपको तो लगा दिया बस की बत्ती के पीछे भागते जाए, वो तो तब्दील हो गए। आप भागते चले, जब पता चले, जब इतना पहुंचे कि कानून ये है, कानून ये है, सूरत हाल ये, अभी मालूमात आई नहीं है। अभी ऐसे स्पीकर बना देंगे जो आपको आके वलवल आके बातें सुनाएंगे, आप तालियां बजाएंगे, क्योंकि जो चौंका देने वाली बातें होती हैं वो लोगों के लिए नहीं होती। जो लोग दरगाहों पे दुआ मांगते हो, उनको जाके कहें कि एंटीबायोटिक लें, उसमें वो खुश थोड़ी होंगे। देखो, मानो कलंदर लाल शाहबाज की दरगाह पे या भिक्षा की दरगाह पे खड़ी हुआ मरीज और वहां इलाज के लिए बैठा हुआ है, उसको हिला के जगा के कहें कि बाबा एंटीबायोटिक खाओ, वो आपकी बात से खुश थोड़ी होगा। खुश किस पे होगा? जो दरगाह पे आके कहे हक हक करके कलंदरी नारा मार के नाचना शुरू कर दे, आप भी नाचना शुरू कर देंगे। तो ऐसे जो मुकर्रर आएंगे जो कहेंगे हक, बातिल तबाह होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, मुसलमान छाने वाले हैं, अंग्रेज, अमेरिका, रूस, चीन बर्बाद होने वाले हैं। बाकी चंद दिनों की बात है, यूट्यूबर आगे कहेंगे एक और विकेट गिर गई, शॉट लग गया, धमाका होने वाला है, खतरा आसमान पे मंडला है, आप खुश हो जाएंगे। फेसबुक पे तो एल्गोरिथम है कि जिस एक किस्म की थर्ड क्लास आपने वीडियो देखी, वैसी ही वीडियो आना शुरू हो जाएंगी वॉल पे। आपने कहा मेरा कप्तान छा गया, तो इसी 50 वीडियो और आ जाएगी, मेरा कप्तान छा गया। अब वहां पता नहीं क्या टीम सही बच चुकी हो, आप वो वीडियो देखते जाएंगे और उसमें आपको लगेगा कि पाकिस्तान छा गया है, दुनिया हिला दी हमने मुसलमानों को, और अंग्रेज दुम दबा के भागने वाला है, हम छा गए। भारत पे हम फाते होने वाले हैं, रूस और चीन को हम उड़ाने वाले हैं चंद दिनों में। वीडियो ही ऐसी आएंगी तो मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। ये है एक तरफ, दूसरी है हकीकी जिंदगी। अब हकीकी जिंदगी क्या है? हकीकी जिंदगी ये है, पानी तो खान पर आऊं कुछ अगर बरी थे, तब्दीली आएगी, मगर कुछ ना कुछ हमें भी करना होगा। हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए अपने बिसात के मुताबिक हालात से टकराओ। अब वो कैसे होगा? अदा तो गाला एवट तक पाऊं तो चोरपुर हईकरे पास करता पाऊं जाए देखा जाते। सीरियस बात है ना इस पे, जो भाग दौड़, कोई फोटो खींच रहा है, कोई आगे कलाबाजी कर रहा है, कोई एक दूसरे का गर्दन हिला रहा है, और अफसोस की बात है कि वुकला है, कंटेम्प्ट हो जाती है, मोबाइल की रिंग पर भी कंटेम्प्ट हो जाती है। तो संजीदा बातें, अपन संजीदा बातों में मतलब यहां दो लोग बैठे हैं, मैं आपसे मिलवाता हूं। क्या अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए जरूरी है आप वकील हो? नहीं। आपके मोहल्ले में, आपकी गली में गड़बड़ है, उसके लिए जरूरी है कि आप कानूनदान हो? नहीं। क्या कर सकते हैं? छाता करे सकते जेके मुझे सुनने में दिसंदा है ना, सोशल मीडिया जरिए ना वीडियो के उन्हनि खे मुखातिब है, छा करे सघूं था? पहले उठाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 9, राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी यह है कि आपको कोई बंदूक की गोली ना मारे, छुरा ना मारे। सिक्योरिटी यह भी है कि आपको रास्ता चलते हुए किसी लड़की को कोई छेड़े ना। सिक्योरिटी यह भी है कि कोई दीवार फलांग कर आपके लॉन या आपके घर में न घुस आए। सिक्योरिटी ये भी है कि आपकी मोटर बाइक कोई चुरा के न ले जाए, और सिक्योरिटी ये भी है कि आपके मोहल्ले के गटर का ढकना खुला हुआ न हो जिसमें बच्चा गिर के मर जाए। तो उसके लिए वकील की जरूरत है ना। तमाम को भी शहरी उन आर्टिकल 9 तहत हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर सके तो अंडर आर्टिकल 199 फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 9 शामिल है। आर्टिकल 7 से ऑनवर्ड्स अप टू आर्टिकल 27
fundamental rights سے. اور fundamental rights, if they are being violated, you have every right to approach the concerned High Court of that jurisdiction for issuance of a writ. Be that a writ of quo warranto, habeas corpus, mandamus, certiorari, anything. اب اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں, ہمیں وہیں سب ہوتا ہے. ہاں تبھی چاہتا ہوں کہ آپ کیے وجہ ہائی کورٹ کیئر بنے ہوتا کہ بتایا. پاکستان میں بڑا آسان طریقہ ہے دوسروں پہ حملہ آور ہو کے, دوسروں کو غلط, جاہل, واجب القتل, کافر قرار دینا سب سے آسان ہے. تم نے ہولی منائی, تم کافر ہو. تم دیوالی پہ گئے, تم کافر ہو. تم نے کرسمس منائی, کافر ہو. ایک مولوی صاحب کو پڑھا, اس نے لکھا ہے فیس بک میں ایف بڑی کے بجائے چھوٹی لکھی ہوئی ہے, یہ بھی یہود و حنود کی سازش ہے. فیس بک کی پہلی ایف بڑی ایف کیوں نہیں ہے, چھوٹی ایف کیوں ہے. اس کو اس نے جوڑا ہے جا کے, یہ کہ کرائسٹ میں یہ بنا ہوا ہے, یہ سلیب بنا ہوا ہے. عقل سے پیدل لوگ نہیں آتے. تو آرٹیکل 20 allows you to profess your religion. مذہبی رسومات ادا کرنے کا کی قانون اجازت دیتا ہے, میں نہیں دیتا, پاکستان کا آئین دیتا ہے, بشرطے کہ آپ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. اور وہ مسلمان کو بھی اجازت نہیں ہے, کسی ہندو کو بھی اجازت نہیں ہے, کرسچن کو بھی نہیں ہے, مسلمان کو بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے دوسروں کو ڈسٹرب کرے. اور ایسا کوئی لا نہیں ہے پاکستان میں کہ آپ کرسمس نہیں بنا سکتے مسلمان. پاکستان کے ہر چوتھے پانچویں گھر کا ایک بندہ تو باہر ہے, اور پنجاب کے ہر دوسرے گھر سے ایک بندہ باہر ہے, کے پی کے باہر ہے. پھر وہاں امریکہ میں تو کرسمس بھی مناتے ہیں, ہالووین بھی مناتے ہیں, تھینکس گیونگ بھی مناتے ہیں. اور دبئی اور سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں مقامی دن مناتے ہیں, وہاں کے نیشنل ڈیز. تو پاکستان میں کیوں پابندی ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں نہ مناؤ, کراچی یونیورسٹی میں نہ مناؤ؟ یہ فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف اسمبلی کی بھی خلاف ورزی. آرٹیکل 16 اور 17 اس پہ آپ جا سکتے ہیں عدالتوں کہ ہم جمع ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ہمیں کیوں روکا جائے؟ تبھی منی سب ہوتا بابا اساں کے فلانے کم کا چھو کیا روکے, ان کم جو منع کیڑے قانون میں تھیلا وہ دیکھا رہے. مثلاً کہ کوئی کہ لڑکیوں کی فٹ بال ٹیم کی اجازت نہیں ہے, تو دکھا دیں پاکستان کے کون سے آئین کے کون. ابھی کل سے پاکستان کی خواتین کی فٹ بال ٹیم دورے پہ ہے بیرون ملک, اچھی بات. کہاں لکھا ہوا ہے, کتنے لکھل ہے؟ قانون کی گال کرنا میں پوچھنا کھپے ہی لکھل کتے ہے. تو جے کا شے منے پہ کری وہ کتے لکھل ہے. ہوائی گال نہ کر, نہیں ہے فلاڑو آ رہی تو رسم رسم کے چھل خدا قانون میں کتے لکھل ہے, آئین میں کتے لکھل ہے, پاکستان پینل کوڈ میں کتے ہے. کرمنل فیس بک تے مشہور علاقے کیڑی دب دے سکے تو انہاں نے چھڑیوس قانون میں دیکھا تو دی گنجائش کتے ہے. تے جے کہ جیکو مانو پاکستان کے دقیانوسیت کے راستے تے آنے تو وہ رگو نے علاقے جو نا وہ ملک کا دشمن. یہ سمجھیں کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہاں اقلیتوں کے ساتھ ظلم کریں, یہ راستہ ہموار کر رہا ہے کہ امریکہ, جرمنی, فرانس, کینیڈا, آسٹریلیا میں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو, کیونکہ یہاں پہ جو آپ کریں گے وہ ریسیپروکیٹ ہوگا. جو آپ یہاں کریں گے اس کے نتائج وہاں نکل لیں. آپ کی بجٹ بند ہے, آپ کے آئی ایم ایف کی تلوار لٹک رہی ہے, ورلڈ بینک لٹک رہا ہے, اس میں جو شخص انتہا پسندی پھیلائے گا, جو شخص ٹکراؤ پیدا کرے گا, وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے, پاکستان کا دشمن ہے, سندھ کا دشمن ہے, ہر اس ضلع کا دشمن ہے جہاں پہ وہ انتہا پسندانہ خیالات پھیلا رہا ہے. اس کے خلاف آپ چیلنج کر سکتے ہیں. سب سے اہم شک ہے 19A, رائٹ ٹو انفارمیشن. اٹ از ناٹ بینگ یوزڈ پراپرلی. عوام کے آپ کو عدالتوں نے, قانون نے, آئین نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی سے پہلے ہوتا تھا بابا یہ بات مت پوچھو, اب تمہیں چھاونے ڈی سی کے جے کا بات کے چو بجٹ کے چو تان چھاونے, مختار کار کے چو کترا ریوینیو جا فارم ستا جاری کے چو تان چھاونے. ابھی ہانے تا کے رائٹ ہے کہ کیڑے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ, پرائیویٹ نہیں. یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ کسی پرائیویٹ بچر کی دکان والے سے پوچھیں کہ کتنی کما رہے ہو, یا ڈاکٹر وہ نہیں بتانا چاہے تو اس کی مرضی ہے.
مگر ہر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے آپ کو پوچھنے کا حق ہے گاڑی کھاتے میں کتنے سویپرز ہیں, کتنی ٹیوب لائٹس رکھی ہوئی ہیں, سول ہاسپٹل حیدرآباد میں اس سال کتنی بجٹ آئی, کتنی دوائیاں آئی, کتنے مریضوں کا مفت علاج کیا گیا, کتنا بیڈز اینڈ وارڈ میں, گائنی کے وارڈ میں کتنی کی دوائیاں آئیں, آرتھوپیڈکس میں کتنے کی آئیں, ای این ٹی کی کتنے کی آئیں, آکسیجن سلنڈرز کتنے ہیں, کتنی آپ کے پاس ڈرپس یوز ہوتی ہیں, اس میڈیکل اسٹور سے سول ہاسپٹل کتنے کی دوائیاں لیتا ہے, بجٹ کیا ہے, کہاں استعمال ہوا, کہاں گیا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر بتاؤ حیدرآباد میں شراب کے گتے کتنے ہیں اور وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور وہ کس کو بیچ رہے ہیں. بات تو مائنارٹیز کی ہے, کیا وہ واقعی مائنارٹیز کو بیچ رہے ہیں یا ایک جنرل بزنس بن گیا ہے. منشیات کے کون سے اڈے ہیں, چائلڈ ابیوز جن علاقوں میں ہوتا ہے اس تھانے سے پوچھ سکتے ہیں, پولیس کے تھانے سے پوچھ سکتے ہیں انڈر آرٹیکل 19A کہ ایس ایچ او کنسرن بھٹشا فلانا دادو حیدرآباد سول ہاسپٹل کے قریب مارکیٹ تھانہ کہ بتاؤ چائلڈ ابیوز کے کتنے کیسز آئے ہیں گزشتہ سال میں, ان میں سے کتنوں کو پراسیکیوٹ کیا ہے, کتنوں کی کنوکشن ہوئی ہے, اس میں آپ نے وٹنس کتنے پیش کیے, سب معلومات لے سکتے ہیں اور لے کر پھر ان کے خلاف مقدمہ درج کر سکتے ہیں کہ اتنی بجٹ آئی یہ ضائع ہو گئی, کہنا بھائی پیسہ کہنا کہیں تو خبر پڑے کتنا آیا پیسہ. سجو جی تمام ٹکڑوں بنڈل ہو جائے آپ میں سے جو ایکٹیوسٹ ہیں وکیل ہیں, جب تک آپ وکالت کر لیں, جب تک دوسروں کے کیسز لڑیں, جب تک آپ طالب علم ہیں, تاکہ ٹیم زبردست ہے, سوچو کم کیا کرو, give them a big hand. سارا آرگنائزر تو تمی دے کے بیٹھے ہو, سب بیٹھا ہو, انہیں بیٹھے درخواست کیوں فوٹو سٹیٹ تھل پروفارما کیوں ہو جائے تو dash 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 subject provide me information dash 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 under article 19A of the Constitution of Pakistan. Respected sir, it is submitted that I need information with regard to dash 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 district Falang. Kindly provide me this information within next 7 days under article 19A of the Constitution of Pakistan. نیچے تھینک یو, نام, ایڈریس, شناختی کارڈ نمبر وغیرہ جو بھی, جہاں جائیں جو شرارت کرے اس کو درخواست لکھا کے دے دیں, اسی وقت ریسیو کروا لیں, ریسیو ضرور کروانا, فوٹو کاپی کروا کے ریسیو کروا لیں. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ درخواست کتنے لڑکے اے گریڈ میں پاس ہوئے, کتنے A1 گریڈ میں پاس ہوئے, کتنے فلاں میں پاس ہوئے, رزلٹ اناؤنس ہونے کے obviously بات, کتنی ایڈمیشنز ہوئی, جو گورنمنٹ کالج ادارہ ہے, جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, جو گورنمنٹ فیکٹری ہے, جو گورنمنٹ کسی بھی چیز کا ہائی ویز, حیدرآباد میں کتنے کلومیٹر روڈ بنا, کہاں گئی بجٹ, ایکسین آفس کی بجٹ کتنی ہے, سپرنٹینڈنٹ انجینئر کی کتنی ہے, چیف انجینئر کی کتنی ہے, انہیں میں تاکہ وکیل شو کرے درخواست پہلے کر دیو وٹ فور انفارمیشن بچی پہنچاؤ. اگر وہ فار ایگزامپل آپ کو کہہ دے کہ یہ بجٹ ہم نے 150 مین ہول بنوائے لطیف آباد 8 نمبر میں, اس سے پوچھے کون سی گلیوں میں, کہ گلی نمبر 7, 8, بلاک ڈی, ایف, جا کے تصویر نکال کے پھر اس کو درخواست دیں. آپ نے جو 6 گلیاں بتائی ہیں ان 6 گلیوں میں 150 آپ نے مین ہول کے کور بتائیں, وہاں تو 15 لگے ہوئے, باقی 135 کہاں گئے, جواب نہ دے کیس مقدمہ. اچھا اس کو چلے ہائی کورٹ دور ہوگی. انڈر سیکشن 133 CRPC ریموول آف پبلک نیوسنس, نیوسنس یعنی پریشانی, عوام کی پریشانی دور کرنے کے لیے سیکشن 133 CRPC عام میجسٹریٹ, ہر عام میجسٹریٹ تاں جو کیس بدھی سکے تو سیکشن 133 CRPC ہے. وکیل صاحب ناراض تھیندا جے کہ ہوں یہ ॿڌایا پيو کم مانا مفت جائے نا, ماڻهو یہ ॿڌائي ته پاڻ وڃي ڊسپلن سيکائي ڪري, وکیل ويچاري جي في هوندي ته جيڪڏهن آؤں تव्हांखे ٻڌايا پيو 133 CRPC ڪرمنل پروسيجر کوڊ 133 پبلڪ न्यूसेंस مين جو واڙو आहे اسان جي گھٽيءَ ۾ ريموو ڪيو, هٿ جو ميجسٽريٽ قلم 133 مين جو واڙو ہٹايو. پولٽري فارم بنایا ہوا ہے ہماری گلی میں, وہاں سے بدبو آ رہی ہے, گندگی پھیل رہی ہے, کنسرن میجسٹریٹ Section 133 CRPC public nuisance should be removed. کچھ نہیں کرنا, وکیل نہیں کرنا, کرے تو اچھا ہے, ویسے ویسے ہو تو ضرور کرے وکیل, وکیلوں کی بھی روزی ہے جس طرح ڈاکٹروں کی ہے, جس طرح انجینئرس کی ہے, مگر اگر نہیں ہے پیسے تو لڑنے سے انکار کر دیں آپ. اور پبلک نیوسنس کیا ہے,
पानी बंद करना पब्लिक न्यूसेंस है, गली की नाली बंद करना पब्लिक न्यूसेंस है, मोहल्ले में खड़े होकर हार्न बजाना रोज पब्लिक न्यूसेंस है, मोहल्ले में गाड़ियां पार्क करके आपका रास्ता बंद कर देना पब्लिक न्यूसेंस है। ऐसा कोई जानवर, कोई कुत्ता, कोई भेड़िया, कोई शेर, कोई ऐसा चीता, बंदर पालना जैसे लोग जख्मी हो जाए पब्लिक न्यूसेंस है। रात को मैं, कुत्ता है हमारा, जर्मन शेफर्ड है, ब्रूनो, उसको मैं चक्कर लगा रहा था रस्सी से बांध के, तो बिल्ली भागी तो उसके पीछे भागा, मैंने दबोच लिया उसको, पकड़ो मास मुझे भाई पब्लिक न्यूसेंस थी अला बिल्ली के नहीं पाले लो जे जाके मानो के वही तंग करे। वकील है ना, उसको पता है कि इसकी कास्ट क्या होती है। तो कोई भी शख्स कोई भी गड़बड़ कर रहा हो, गड़बड़ हो बशर्ते इलीगल, तो पब्लिक न्यूसेंस है। उसके लिए हाई कोर्ट नहीं जाना, सेशंस कोर्ट नहीं जाना। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 उसका पब्लिक न्यूसेंस बताया गया। जनरल क्लॉज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 44, सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंस। अब मसला ये कि लोगों को पता नहीं, लोग किसी एक चीज का रट्टा मारते हैं, उस पर चलते हैं, हफ्ते भर के बाद वो बात भूल जाते हैं, फिर दूसरी चीज का रट्टा मारते हैं, फिर उस पर चलते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन है ही। जनरल को डॉक्टर की आलमानी है, डॉक्टर हुसैन लगा रही हो, कोई डॉक्टर अदीब रिजवी, जनरल बहुत सी बातों का थोड़ा थोड़ा पता हो और किसी बात का अहम बात की काफी सारा पता वो नहीं है। लोगों ने चंद नुकात रटे हुए हैं, इसलिए फंस जाते हैं। हमसे मशवरा लें तो फंस जाएंगे, क्योंकि पता है नहीं उन बेचारों, उनका कसूर नहीं, उनको पता ही नहीं। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं संघ के मुख्तलिफ अजला में, उनको बेसिक बातों का पता नहीं है। कल भी एक वकील साहब रात बैठे हुए थे, उनसे एक सवाल, वो वकील साहब किसी और ने सवाल पूछा, उसने ऐसे ही जवाब दे दिया। मैंने उसकी सारी बात सुनी और फिर कहा मुझे बता ये न कर छात्रों मुझे ये तो सलाह तो नहीं, ये गलत है, कि ना सही ठीक कौन थी तो इलीगल सलाह तो मशवरा। तो आप खुद पढ़ें, जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ें, 2 सब क्लॉज 44, 91 सीपीसी पढ़ें, 133 सीआरपीसी पढ़ें और आर्टिकल 7 से लेकर आर्टिकल 27 तक पढ़ें, फंडामेंटल राइट्स। आपको पता चल जाएगा अदालतों में कैसे बैठे। अब अभी चंदो असानी अंग्रेजी या वकील को नहीं मैंने बजना सवेल नजर आया आने आयन को नवा और रोशन कितने है, रोशन मसूद मसूद कितने है, मसूद लाचारी आए है ना, माशूक चांडो कितने है, माशूक चांडो आए है ना, अल्ताफ खास के लिए ना। अब ये लोग आम लोग हैं, एलएलबी नहीं किए हुए, एलएलबी नहीं है, वकील नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं, एमबीए और बीबीए भी नहीं। इनमें से कोई गरीब मिस्कीन मजदूरी करता है, कोई इनमें से इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, कोई इनमें सहाफी कलमकार है, आम लोग। इन आम लोगों ने दर्जनों मुकदमा दर्ज किया। अब तुझे केड़ा केड़ा केस पे आलन है? डीसी ऑफिस में बताए, एसएसपी हैदराबाद, डीआईजी, एमडी वासा, एक्सएन वासा, टीएमओ, सीएमओ सब ने बताए। केड़ा केस केड़े केस में है? ट्रैफिक जो जाम थी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक का निजाम क्यों खराब है? इसमें ये एक लड़का जिसकी एलएलबी नहीं है, मसूद लाचारी, उसके मुकदमा दर्ज है। छा ट्रैफिक के छा है ट्रैफिक जाम थी यहीं से जो डिस्ट्रिक्ट इंडिया है पुलिस के वस्तु ने मिलवा उनसे के सीपी फाइल चलाए। सीपी कहां पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सीट अपने जाती मकसद के लिए नहीं। हैदराबाद शहर में ट्रैफिक का निजाम खराब है और सिविल कोर्ट में 133 सीआरपीसी का केस कहां दाखिल है? ये जस्टिस जोखो साहब है, उसके पास है। वो देखो एचडी है, वासा और कितने दाखिल है? 133 सी और यार जस्ट केड़ छापे बुरी उनमें मेन होल का कवर नहीं है, कासों मेन होल के कवर नहीं है कासमाबाद में, उस पे मुकदमा दर्ज है। माशूक तू केड़ा केस दाखिल तो करी? उसने ने जो लीज तैयार होने ते वरी वापस हमला पे करे ऐं जेकी बिल्डर ने उनके खरीद करे वरी लीज कराया उन्हें बिल्डिंग को दे सरकारी जमीनों पर लीज की बिल्डिंग पे कब्जा करके। अल्ताफ, आप कौन कौन से मुकदमा दर्ज करते रहते हैं? हैदराबाद के गांव गोठों को गैस की सहूलियत नहीं थी, वो पिटीशन दाखिल की थी, वो उसके बाद दर्जनों गोठों को गैस मिली। अब ये आम लोग हैं, लॉ के स्टूडेंट नहीं है, वकील होना तो दूर की बात, लॉ के स्टूडेंट भी नहीं, और अपने कामों
नहीं कर रहे और कोई फीस भी नहीं दे रहे। मेरे पास आ गए, दूसरे दोस्त के पास चले गए, इसके पास चले गए, इसके पास चले गए, अगर ये दरखास्त उठाई हम कहते तो दुरुस्त कर दे, किसी ने बता दिया रिस्पोंडेंट फला को बनाओ, किसी ने बता दिया रिस्पोंडेंट फला को बनाओ, एक दफा सीख गए, अब दाखिल कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा केस दाखिल नहीं कर रहा है जिसका मकसद लोगों को तंग करना हो। एक तरीका होता है कि आपको जब आ जाए तब वो तभी आम मानव मिस्किन के तंग करना शुरू करो, गरीब लोगों पे झूठे मुकदमा, मोहल्ले में किसी से लड़ाई, ये नहीं, इट्स नॉट फेयर। इट्स नॉट फेयर दैट यू हैव बीन टॉट समथिंग स्पेशल एंड यू हैव बीन मिसयूजिंग इट। आपको कोई चीज अच्छी समझाई गई है और सीख गए, अब आप सबको तंग करते फिरें, तंग ना ही करो। सरकार, HDA, मसलन सिविल हॉस्पिटल आप जाते हैं, तमाम केर छोड़ो तो कि 4 वकील बिठाओ जबरदस्त, एडा ही छोकरी वेठो वकील, सिविल हॉस्पिटल बनो था, OPD में बिठा देते हैं आपको, थोड़ी देर के बाद नंबर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया, बैठे हुए हैं, मरीज तड़प रहा है सामने, फौरन नाम नोट करें, जो डॉक्टर वहां मौजूद है OPD में उसका नाम लिखें, जो आपने पर्ची कटवाई हुई है उस पर्ची का नंबर और फोटो स्टेट संभाल के रखें, जाएं MS की ऑफिस पे, कहें कि MS से मिलना है, MS नहीं मिलेगा, 100 में से 99% आपको उसकी तस्वीर लेके दूसरे दिन फाइल कर दें, CP फाइल कर दें या 133 CRPC फाइल कर दें कि सिविल हॉस्पिटल की बजट बताया जाए कि ये क्यों OPD में इतनी देर होती है, स्टाफ कितना है, लोग तड़प रहे थे, कुछ तड़पते हुए मरीजों के फोटोज ले लें और कहें कि इलाज नहीं हो रहा, बजट सारी खा गए, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, दवाइयां नहीं है, लोगों को लूट लिया है। मैं आपको इनवाइट करता हूं, छलियूं गालियूं करण के बजाय तव्हांखे दावत तो ॾियां त तव्हां जिन जो बि ज़मीर ज़िंदा आहे, जेके बि सम्झनि था सिंध असांजी मां आहे, ही मुल्क असांजो वतन आहे, ही हैदराबाद, दादू, शिकारपुर, कंदकोट, नगर पार्क असांजा आहिनि, से दरख़्वास्त ठाहियो, जिते ज़ुल्म ॾिसो, ज़्यादती ॾिसो, तव्हां मां केरु आहे जेको मूंसां वाइदो करे त ईंदड़ 3 खां 6 महीननि में आउं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जा केस दाख़िल कंदुसि, केरु हथ खणो। Zindabad, Zindabad, look at them, great, give them a big hand, excellent। त पंहिंजे हक़नि लाइ पाण लड़ो, अदालतुनि खे हरकत में आणियो, पानी की बॉटल भरें, नलके में से पानी निकल रहा है, मिट्टी है, पानी भरें, लेबोरेटरी में जाकर उसकी टेस्ट के लिए दरखास्त दे दें और फिर वो जमा करवा दें 133 के तहत या 199 के तहत या सेशंस कोर्ट में कहीं भी, और कहें कि ये घटिया पानी मेरे घर में आ रहा है पीने के लिए, और ये गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, केस दाखिल करो। शिकारपुर की बजट के नाम केस दाखिल करो, लोड शेडिंग है, केस दाखिल करें। लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी मगर ये केस दाखिल कर सकते हैं कि भाई हमें वापदा बताए कि इस शहर में कितने घंटे लोड शेडिंग होनी है, पाकिस्तान भर के फैसले के तहत फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे होनी है, 8 घंटे होनी है, तो आप 2-2 घंटे करके 4 स्पेन में बंद कर दें, बाकी 14 घंटे आप लाइट दें। ये क्या 1.5 घंटे के बाद लाइट आ रही, कभी 11:15 बजे जा रही है, कभी 10:15 बजे जा रही है, कभी 10:05 पे जा रही है। आप एक शेड्यूल दें कि इलेक्ट्रिक, हेस्को, लेस्को जो भी है वो दे एक शेड्यूल, इस टाइम पे लाइट जाएगी, ठीक है, फेयर इनफ। पाकिस्तान में बिजली का बहरान है, फेयर इनफ, इस टाइम पे बिजली जाए। वासा बताए कि बजट नहीं है, आप उसमें पार्टी बनाएं सिंध गवर्नमेंट को कि वासा को बजट दें कि पीने का साफ पानी मिले। औरतों, आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कंहिंजे लाइ आहे, मर्द लाइ। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सॼे पाकिस्तान जे 22 करोड़ मां 11 करोड़ औरतुनि लाइ। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट माना छा आहे? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आहे त उन में का बि रिस्ट्रिक्शन न हुजे। क्यों रुकावट है कि यहाँ मत जाओ पढ़ने जाओ, जामशोरी मत पढ़ने जाओ, सिंध यूनिवर्सिटी मत जाओ, फला बदतमीज है, फला क्यों गर्ल्स कॉलेज में पढ़ो, आम को एजुकेशन वाले कॉलेज में न पढ़ो, फला जगह घूमने क्यों जा रही हो, जॉब क्यों कर रही हो, ये सारी वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 15 की। यू मस्ट चैलेंज इट। क्यों? इजाजत की जरूरत ही नहीं है, बच्चा हो तो इजाजत की जरूरत है। मैच्योर एडल्ट में तफरीक थोड़ी है कि ये एडल्ट मर्द है और ये एडल्ट औरत है। एडल्ट है, एडल्ट सिटीजन, ऑल आर इक्वल। आर्टिकल 25 of the Constitution Pakistan, Pakistan's Constitution's Article 25
says it in clear words that all citizens are equal. जने बराबर हैं, तो ट्रांसजेंडर हो जाए, औरत हो जाए, मर्द हो जाए, बराबर। हेरा छोड़ पढ़ने में, नौकरी करना छोड़, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता। Who the hell you are? इजाजत देने वाले तुम होते कौन हो? शुरू में मसाइल होंगे। ये बातें जब नहीं होंगी तो मसाइल तो अमेरिका में भी हुए थे ना, जब कहा गया था कि इस डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। होटल पे लिखा था अफ्रीका में, अमेरिका में, कि कुत्तों और कालों को आने की इजाजत नहीं है। अब वहां अमेरिका में काला सदर था ना, बराक ओबामा। मिशेल ओबामा अमेरिका की सबसे मकबूल तरीन खातून है ना। तो लड़ाई तो होती, अंग्रेज भी लिखते थे ये कि महात्मा गांधी को उतार के फेंक दिया गया था साउथ अफ्रीका में रेलगाड़ी से कि तुम फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते। उसने कहा टिकट है, उसने कहा गेट लॉस्ट, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी सिटिंग इनसाइड दिस बोगी या वैगन, ट्रेन वैगन कंपार्टमेंट, यू आर नॉट अलाउड, यू आर ब्राउन, यू आर ब्लैक। फिर अब उस साउथ अफ्रीका का सदर पहले नेल्सन मंडेला था, एक काला। तो रुकावटें तो होंगी, हाणे रुकावटें जे साम्हूं ताईं हथियार फिटा करे भॼी वञो, चओ बाबा कुछ कोन थींदो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे, चाहियो तो मुकाबलो कयो। और जो पहले मुकाबले के लिए उठेगा उसको एडवांटेज क्या होगा? उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलातें भी आएंगी और सबसे ज्यादा फायदे भी। जो लड़कियां ज्यादा आती हैं, पाकिस्तान में होता है ना एएसपी फला, एएसपी फला, एसएसपी फला, डीसी, क्योंकि लड़कियों के लिए जहां मुश्किलातें हैं वहां उनके लिए सिंपैथी भी है कि एक बच्ची है बेचारी, कितनी मुश्किलात से मुकाबला करके आगे आई होगी, तो इसको थोड़ी सी लिवरेज ज्यादा मिलनी चाहिए, उसको उसके घर के करीब पोस्टिंग दी जाएगी, उसको कोई दबाव डाल नहीं सकेगा कोई वडेरा जिस तरह मर्दों पे डलता है। तो आपकी वल्नरेबिलिटी आपके लिए मौके भी है। तो जेकर तव्हां मजबूत थी बीहंदो तो जेका कमजोरी है, मसलन कोई लड़की हो और वो माइनॉरिटीज की हो और होशियार हो, तो उसके लिए आम मुस्लिम लड़की से भी आगे बढ़ने के ज्यादा मौके हैं, क्योंकि सब कहेंगे अक़लियतों की बच्ची है, इनके लिए मौके कम है, बेचारी हिंदू या क्रिश्चियन बच्ची है, पारसी बच्ची है, सिख बच्ची है, हिन जे लाइ मौक़ा घटन काबिल है, उसको ज्यादा मौका मिलेगा। तो आपकी जो कमजोरी है उस कमजोरी को ताकत बनाए, पंहिंजी कमजोरी के पंहिंजी ताकत बनाए। इस वक्त में जेके जरगा पे थियनि, वॾेरा माण्हू मारीनि पिया, धाड़े लागू पिया कनि, nobody has challenged it. I couldn't find a single constitution. Maybe there are certain petitions pending over there, but I didn't see any petition. I didn't hear कि कोई petition लाड़काना या सखर बैच में है एसएसपीज या डीआईजीज या कंसर्न नाज़िम्स के खिलाफ कि यहाँ इतने सारे बच्चे क्यों अगवा हुए हैं, कदकोट, जेकबाबाद, घुटकी में बच्चे मारे जा रहे हैं। तो the lawyers of those areas should come forward, they should address। बल्कि आप आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 184 के सब क्लास 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, वेयर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग चैलेंज्ड, then notwithstanding article 199 you can challenge the same in Supreme Court of Pakistan। तो पाकिस्तान की अदालतों को अपनी ताकत बनाए। तमाम सबने की हम गुजारिश तो कहें तो जेके भी शुरू है। अच्छा आप कहेंगे अया साहब मशवरे बहुत दे रहे हैं, पाण चुकन था कहो तो वरी सवाल पूछो क्या के चवन पापा ये करते पूछो तो करी पाण वेठो दादू असा के सलाह दे चालू सकर, ठीक है। तो जने मुझी तमा जेतरी एज हुई ए बया इलाही सारा कम कोन हुआ, तदे मु सब ये कम कया। एक दफा मैं गुजर रहा था, आपको पता नहीं इल्म है या नहीं, हिकिड़ो दफ़ो गुजरस पे वियुसि केस हलाइण कोटड़ी, ब्रिज ते चढ़ियुसि, डंडो लगाए पीछा चऊं 20 रुपया ॾे। मूं चयो बाबा कोटड़ी केस है, वकील है, ऐं 400 रुपये कोन हुअसि। जो वकील हो कुछ भी हो आपको ये टोल टैक्स देना है। मैंने 20 रुपये दिए, पता नहीं 30 रुपये। गया, जज था ही नहीं कोटड़ी की अदालत में, कोटड़ी की अदालत शहर में होती थी। था जो नहीं तो मैं वापस लौटा, वापस कोटड़ी की तरफ से चढ़ा ब्रिज पे, उन्होंने कहा फिर 20 रुपये दो, डंडा लेके खड़े हो गए। मैंने कहा अभी आया था, आधा घंटा हुआ है, वकील है, जज है ही नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। एक दफा उन्होंने कहा नहीं फिर दो, खड़े होकर डंडा बंडा लेके गाड़ी के आगे यूं उस पर बजा रहे हैं बानट, जो उसका ठेकेदार का अमला था। 20 रुपये 30 रुपये 30 रुपये नहीं जाने देंगे, डंडा नीचे। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं। फिर एक बंदा आया, उसने कहा नहीं वकील साहब, जिस तरह होता है ना गुड कॉप बैड कॉप, एक ड्रामे के तौर पे उनका आया, बाबा वकील साहब आए, छजोस होने जो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा वकील साहब आप भी दे दें। मैंने कहा फर्स्ट क्लास। मैंने जेब में 8 रुपये डाली, दे दी। मैंने कहा रसीद तो, रसीद देके
1:30 बज गया था। आई वेंट स्ट्रेट टू हाई कोर्ट और मैंने उसी वक्त पिटीशन फाइल की अगेंस्ट मेकिंग रेलवे अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम एंड ऑल ऑफ कंसर्न्स DCO फला एज रिस्पॉन्डेंट। और जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी या जस्टिस अताउर रहमान, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम, 2-3 जजेस थे, या शायद अनवर ज़हीर जमाली जो चीफ जस्टिस बने। पिटीशन लगी, फर्स्ट हियरिंग पे नोटिस हुए, सेकंड हियरिंग पे कोटड़ी ब्रिज का सारा टैक्स रोक दिया, अभी तक रुका हुआ। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोटड़ी पे कोई टैक्स नहीं। इस फकीर ने ये काम किया। हैदराबाद रानीबाग गया, परिंदे, पता नहीं बगले और ये बंदर बेचारे यूं भूख में बैठे हुए हैं। जिस तरह हमने लोगों को बना दिया ना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड पे, जिस तरह हमारी बहनें भांजियां पाण सभिनी जो पिननि पियूं, ये रानीबाग जूं जेके भोलड़ा जानवर आहिनि वात पड़ वेठा आहिनि, भूख से कंगले बेचारे दुबले पतले छोटे बच्चों को मैं ले गया था। उसी रात को पिटीशन बना के दूसरे दिन पिटीशन फाइल, रानीबाग का पूरा अमला सस्पेंड, रानीबाग के लिए नई बजट, नए प्लान, सब काम शुरू। हैंडीकेप्ड बच्चों का स्कूल था सिंध म्यूजियम के सामने, उस पर कब्जा, उसके खिलाफ पिटीशन स्टॉप। एक गर्ल्स कॉलेज और उसके बराबर में, जुबैदा कॉलेज के बराबर में बिल्डिंग पे कब्जा, पिटीशन, वर्क स्टॉप। वेयरएवर आप जाएंगे और आपका केस जायज होगा और अवामी मफादात का होगा। सिंध में पानी खड़ा था, 17 अजला में पिटीशन फाइल की, 17 अजला के DCs को बुलवा के पानी निकालने के लिए अहकामत मिल गए। पानी का केस दाखिल किया, सारी अथॉरिटीज को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया पानी साफ। हाँ, ये परमानेंट हल नहीं होगा। जिस वक्त आप केस दाखिल करेंगे बड़े साल हालत तो सही थी, वो वही ऊपर कम के शुरू किए, करप्शन फिर शुरू हो जाएगी, फिर आपको फिर लड़ना हो, फिर लड़ेंगे, फिर आपकी जगह कोई और लड़े, मुसलसल लड़ते रहेंगे और नतीजे मिलेंगे। आप ताकि यकीन तो जाना त कानून की मदद से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की मदद से तव्हां पंहिंजे घर जा, पंहिंजे पाड़े जा, पंहिंजी भिटीअ जा, पंहिंजी कम्युनिटी जा सभिनी जा मसला हल करे सघो था। कानून की मदद वठो, दरखास्त की मदद। अच्छा, एक और आखिरी बात, आप सबको गलतफहमी यह है कि दरखास्त देने से ऑफिसर को कुछ नहीं होता। मैं अफसर भी रहा हूं और सारे अफसर मेरे दोस्त हैं। मैं BE सिविल इंजीनियरिंग भी हूं, मैं LLM भी हूं, मैं LLB भी हूं, मेरी मास्टर्स रूरल डेवलपमेंट में भी है, मेरी मास्टर्स एनवायरनमेंट में भी है, और मेरी सिविल इंजीनियरिंग की बैचलर्स भी है, और मेरी LLM में पूरे सिंध में फर्स्ट पोजीशन है। मैं आपको बताता हूं कि जितने अफसर हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन, इंजीनियर्स, पब्लिक हेल्थ, हाईवेज, इरिगेशन, DCs, SSPs, उनकी यूं टांगे कांपती है जब उनके खिलाफ दरखास्त जाती है। जाहिर नहीं करते, कल्फ लगी पैंट में, अंदर उनकी टांगे कांप रही होती है। पता नहीं सस्पेंड कर देंगे, पता नहीं इस तारीख पे निकाल देंगे, पता नहीं इस तारीख पे जेल भिजवा देंगे। बजाय वो शो ऑफ कर देंगे, कोई परवाह नहीं है, भले वही केस दाखिल करें। आप केस दाखिल करें, वो कांप जाएंगे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और ETOs और पुलिस के अफसरान और रेंजर्स के अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स, तमाम लोग अगर वो गैर कानूनी अगर जायज होंगे तो टांगे नहीं कांपेंगे। अगर गैर कानूनी हरकत करेंगे, आपने देखा नहीं कि कराची में किस तरह एक बच्चे को, बेचारे को गोली मारी थी बीच पे। DG रेंजर्स को हटा दिया अदालत ने, DG रेंजर्स सिंध। आपको याद नहीं है कि माई जिंदो ने अपने बेटों के कातलों को फांसी पर चढ़वा दिया। माई जिंदो जो अनपढ़ खातून थी, गुजरे, लड़ती रही, फांसी चढ़वा दी। तो तभी जगह विढ़ंदो, जब ही पींदो, तभी स्काई इज द लिमिट। You can change the entire environment. Thank you. सर, वॾी महिरबानी। यकीनन तव्हांजी मोटिवेशन